Some news just coming in. Goldie Brar, the shooter conversation has been accessed. Gangster Goldie tipped off singers, shooters is what we're learning. Shooters drank, partied after killing Moosewala is what we are picking up. We're getting you all the details of the investigation in this matter on how this brutal murder of popular singer Sidhu Moosewala was planned. What we learn now is that Goldie Brar shooter conversation has now been accessed by us. The gangster Goldie Brar tipped off singers, shooters. The shooters also drank and partied after killing Moosewala is what we are learning. We also a while ago got you a story of how Lawrence Bishnoi's brothers, who are the accused in this case, have fled India using fake passports. The passports were made in Delhi city from Delhi's regional office, passport office is what we know. We're getting you more details in the manner in which Goldie Brar was involved in this. We have a conversation with the shooters that has now been accessed. Goldie Brar tipped off the singers, shooters. The shooters also made merry, partied and drank alcohol after killing Moosewala is what we are learning. Shreya Chatterjee has more details on that story. Talk to us, Shreya, about the conversations that have been accessed. This conversation between Goldie Brar and the shooters. Well, absolutely, Sneha. Alarming indeed. It was on the 28th of March, 20th of May, just a day prior to the shootout of Sidhu Moosewala. 11 a.m. Goldie Brar had called up the shooters, and what I believe that he had very categorically told Priyavrat Fauji that the security of Sidhu Moosewala has been downgraded, and this is the time that they should be ready to carry forward and execute the plan that they have been chalking. Now, on the 29th of May, when we talk about the Priyavrat Fauji module, which is the Bolero module, along with Ankit Sirsa and Keshav, they were at one location in Haryana, which was provided by them by a person named Navdeep. They met the other module, which is the Corolla module, which had the other lot, which includes Jagdeep, Rupa and the other shooters. They met at the Oklana Mandi area of Haryana. This was around 10:30. At 11 sharp, they left from the Oklana Mandi area to the Mansa area. Once they reached there, they again had a conversation between Goldie Brar. Remember, the wrecking was done prior, but these are the exclusive call details between Goldie Brar and the shooters that we have accessed from the time frame of 28th of May, 11 a.m. till the time the shootout was done. So Goldie Brar, sitting in Canada, who were they referring as doctor in the phone call, was in constant touch. First it was Priyavrat Fauji, who was heading the Bolero module, was called at 11 a.m. On the 28th of May, called and told that this is the time that you should execute the plan because Sidhu Moosewala's security has been downgraded. Priyavrat Fauji said that they are ready. 29th of May morning, they were at one place in Haryana, and at 10:30 a.m. they meet the others, the Corolla module with Jagdeep, Rupa in the Oklana Mandi area. They head for the Mansa area, and there you know that at the Jawahar Cave Road is where they gunned down Sidhu Moosewala. So these are the exclusive call details between the shooters and Goldie Brar of the Lawrence Bishnoi gang, who was sitting there in Canada orchestrating the entire plan. Yes, be with us. I'm going to come back to you for more on that. I'm going to go across straight to my colleague Arvind Oja, who's got more details on that story. Arvind, in conversation से ये evident है कि गोल्डी ब्रार को एक opportunity मिली, जैसे ही security downgrade हुआ और वो information public हो गई, उन्होंने कहा go for the kill, attack करिए, इस मौके का फायदा उठाया जाए। जी बिल्कुल, देखिए, और सिद्धू मूसेवाले पर स्नेहा, इंडिया टुडे लगातार जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है वो सिलसिलेवार तरीके से बता रहा है, जिसमें आज हमें दो स्कूप इंडिया टुडे के पास है। पहली ये कि किस तरीके से एक बड़ी ही कॉन्स्पिरेसी, एक लंबी कॉन्स्पिरेसी के तहत लॉरेंस बिश्नोई ने अपने रिलेटिव, जो अपना भांजा है, उसको पहले इंडिया से बाहर फेक पासपोर्ट पर दुबई भिजवाया, उसके बाद अपने भाई अनमोल बिश्नोई को यूरोप भिजवाया, उसके बाद गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई और उसका भांजा सचिन बिश्नोई, ये तीनों इंडिया के बाहर से प्लानिंग करते हैं। उसके बाद 28 मई को
पहला कॉल गोल्डी बरार का शूटर्स को आता है, जो मानसा विलेज के आसपास ही मौजूद थे, इस मौके की ताक में कि कब वो सिद्धू मूसेवाले का कत्ल करें। गोल्डी बरार का कॉल सुबह तकरीबन 7 बजे आता है शूटर्स को कि सिद्धू मूसेवाला का जो सिक्योरिटी है वो हटा दिया गया है, तुरंत अब जो काम है उसको अंजाम देना है। और आपको बताऊं कि जो गोल्डी बरार है उसका कोड नेम डॉक्टर है, जो शूटर्स है उसको डॉक्टर के नाम से बातचीत करते थे, ताकि एजेंसी जो है वो कॉल को अगर इंटरसेप्ट भी करती है तो वो पता नहीं चल सके कि किसके बीच की बातचीत हो रही है। जी बिल्कुल। उसके बाद पहला कॉल जो शूटर प्रियव्रत फौजी है उसको आता है, और उसके बाद दूसरा जो कॉल्स है गोल्डी बरार कनाडा से बकायदा अपने शूटर्स को बताता है कि सिद्धू मूसेवाले का गेट, बड़ा गेट खुल चुका है। उसके बाद तीसरी कॉल्स में गोल्डी बरार बोलता है कि सिद्धू मूसेवाला बिना सिक्योरिटी के अपने घर से निकल चुका है। तो कनाडा में बैठा गोल्डी बरार वो 3 ऐसे कॉल्स करता है, यानी उसको पूरी जानकारी थी। सिद्धू मूसेवाले के घर के बाहर जो रेकी करने वाले थे वो डायरेक्ट गोल्डी बरार को इस बात की जानकारी दे रहे थे, गोल्डी बरार शूटर्स को इस बात की जानकारी दे रहा था, और इस तरीके से सिद्धू मूसेवाले की हत्या की गई। तो एक पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग थी, ताकि अगर एजेंसी या पंजाब पुलिस इसकी जांच भी करती है तो इस जांच में वो पूरी तरह से एक तरीके से कंफ्यूज हो जाए और गोल्डी बरार तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने एक के बाद एक जो शूटर अरेस्ट किए हैं उनसे ये बातचीत में खुलासा हुआ है, और जो कॉल डिटेल्स है वो इंडिया टुडे के पास है, जिसमें क्या बातचीत हो रही थी उसके बारे में हमने बताया कि कैसे 28 मई को, क्योंकि जब सिक्योरिटी कई वीवीआईपी की पंजाब में हटाई गई जिसमें सिद्धू मूसेवाला था, इसकी जानकारी जैसे ही गोल्डी बरार को लगी 28 मई को, पहली कॉल उसने शूटर को की प्रियव्रत फौजी को कि सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी हटा दी गई है, तुरंत काम करो। अरविंद, ये बिल्कुल एक हैंडलर की तरह काम कर रहा था गोल्डी बरार, कनाडा में बैठा हुआ गोल्डी बरार हैंडलर की तरह काम कर रहा था। एंड व्यूअर्स, दिस इज द मोस्ट कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गोल्डी बरार। आई थिंक वी really joined the dots. Arvind Oja with this exclusive report getting us a minute-to-minute conversation. Arvind, डॉक्टर साहब में जो नाम वो यूज करते हैं, हैंडलर के तौर पे गोल्डी बरार काम करता है, और जो इस पे अटैकर्स हैं जिन्होंने मारा है सिद्धू मूसेवाला को, वो बार बार गोल्डी बरार को डॉक्टर साहब के नाम से एक तरीके से कोड नेम जो कि है वो यूज किया जा रहा है इस पूरे कॉन्वर्सेशन में। और ये भी कहा जाता है कि 29 मई के पहले ये पूरा काम हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये काम हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए इंडिया टुडे ने इसके पहले भी बताया था कि किस तरीके से जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, गोल्डी बरार, वो कितना डेस्परेट था कि सिद्धू मूसेवाला को हर हाल में मारना है। इसके लिए कई बार प्लानिंग हुई। एक बार प्लानिंग हुई कि जो ये गैंग है इसमें 2 लेडी गैंगस्टर को शामिल किया जाए, जिसमें एक को लेडी पुलिस बनाया जाए, दूसरे को मीडिया कर्मी, और उसके बाद सिद्धू मूसेवाले के घर पर रेड के बहाने, ताकि ये पूरा ओरिजिनल लगे, और रेड के बहाने घुसा जाए, और उसके बाद सिद्धू मूसेवाले की हत्या की जाए। लेकिन वो प्लानिंग फेल हो गई। उसके बाद भी 2 से 3 बार अटेम्प्ट हुए, लेकिन सिद्धू मूसेवाला दूसरे रूट से चला जाता था। लेकिन 28 मई को जब गोल्डी बरार को जानकारी मिली कि सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी हटाई गई है, उसने तुरंत कॉल किया प्रियव्रत फौजी को, और प्रियव्रत फौजी ने रिस्पॉन्स दिया कि जी डॉक्टर साहब काम हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि दरअसल गोल्डी बरार को जो तमाम शूटर्स थे वो डॉक्टर साहब कहते थे, वो एक कोड नेम था। लॉरेंस बिश्नोई को टाइगर कहते थे, और काला जठेड़ी, उसके भी शूटर इसमें शामिल है, काला जठेड़ी को अल्फा कहते थे। तो ये देखिए कि किस तरीके से ये जो गैंग है, एक तो ये इंटरनेशनल सिंडिकेट है, इंटरनेशनल गैंग है, क्योंकि इंडिया के बाहर से जो जर्मन मेड और तुर्की मेड और तमाम किस्म के हथियार है, P-30, उसके अलावा ग्लॉक पिस्टल, वो आती है लॉरेंस बिश्नोई का कत्ल करने के लिए। और उसके बाद किस तरीके से पूरा ये जो प्लान है एग्जीक्यूट होता है, जिसमें गोल्डी बरार को डॉक्टर साहब नाम का कोड दिया जाता है, और वही बाकायदा बताता है 28 तारीख को सिक्योरिटी हटा दी गई है। 29 तारीख को कॉल करता है कि सिद्धू मूसेवाला अपने बड़ा के घर का जो कोठी है मानसा में, वो बड़ी कोठी खुल चुकी है। तीसरी कॉल करता है कि जो सिद्धू मूसेवाला है वो बिना सिक्योरिटी के अपने घर से निकल चुका है। उसके बाद इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सिद्धू मूसेवाले के घर के बाहर 2 से 3 लोग जो रेकी कर रहे थे, वो भी गोल्डी बरार को बता रहे थे, शूटर्स को नहीं बता रहे थे। यानी गोल्डी बरार की प्लानिंग यही थी कि अगर शूटर्स पकड़े भी जाते हैं तो रेकी करने वाले नहीं
रेकी करने वालों के सामने उसके नाम का खुलासा न हो और रेकी करने वाले पकड़े जाते हैं तो वो शूटर के नाम का खुलासा न हो। तो अरविंद, इस मैं तरह के पूछना चाहूंगी कोऑर्डिनेशन आपसे इस हैंडलर गोल्डी ब्रार के बारे में, जिसका नाम बहुत ही दिनों से चल रहा है। ये कहते हैं शूटर्स को, उनको तरीका दिखाते हैं मर्डर के बाद की वेपन्स भी कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए। वो कहते हैं कि बब्बर नाम के एक इंसान को आप ये वेपन्स देंगे और आप फतेहाबाद ट्रैवल करेंगे, जहां पर आपको रामनिवास की सहायता मिलेगी। पूरी प्लानिंग की गई है कि वेपन्स भी कैसे डिस्कार्ड और डिस्पोज ऑफ किया जाए। बिल्कुल स्नेहा, वही हम कह रहे हैं कि इंडिया टुडे ने एक के बाद एक ये पूरे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का खुलासा किया, जिसमें हम ये पहली बार बता रहे हैं कि किस तरह से कॉल्स आई और किस तरीके से ये जो गैंग है ऑपरेट करता है। कि अगर कोई वारदात हो जाती है, जैसे सिद्धू मूसेवाला का जब मर्डर हुआ तो वो जो वेपन्स थे वो दूसरी बार भी इनको इस्तेमाल करने थे, क्योंकि काफी महंगे वेपन्स है। इसलिए गोल्डी बार कहता है शूटर्स को, जब वो सिद्धू मूसेवाला का मर्डर कर देते हैं, कि आप सभी लोग फतेहाबाद जाइए, वहां पर एक शख्स मिलेगा रामनिवास, उसको वो आपको हैंडल करेगा। उसके बाद जो वेपन्स है वो आप दूसरे को दे दे, बब्बर नाम के शख्स को। और ऐसा होता भी है, वो वेपन्स देते हैं। उसके बाद जो आगे की इंस्ट्रक्शन आती है वो आती है कि आप ट्रक पकड़ के गुजरात बॉर्डर में एंटर कीजिए। देखिए कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पंजाब पुलिस जो शूटर्स है उनको तलाश रही थी और शूटर्स में चकमा देते हुए ट्रक पकड़ की छोटी गाड़ी नहीं पकड़ी, लग्जरी गाड़ी, बल्कि ट्रक में वो सवार हुए और सीधे पहुंचते हैं गुजरात। और शायद यही वजह है कि ट्रक में वो सवार थे और पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई, पंजाब बॉर्डर उन्होंने ट्रक से क्रॉस किया। तो हैंडलर था पूरी तरीके से गोल्डी बरार और एक एक चीज की जानकारी दे रहा था, कब शूट आउट को अंजाम देना है, हत्याकांड को अंजाम देना, कहाँ भागना है, जो वेपन्स है वो किसके पास देना है। ये वो तमाम चीजें हैं जिसके जरिए काफी दिनों तक यही वो प्लानिंग थी, जिसके जरिए वो पंजाब पुलिस के हाथ में नहीं आ रहे थे। लेकिन स्पेशल सेल ने चूंकि पहले से इन्वेस्टिगेशन कुछ की हुई थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर, तो एक के बाद एक लीड मिलती चली गई और जो अक्यूज हैं वो अरेस्ट हुए। जी बिल्कुल। This conversation establishes conclusively the role of Goldie Brar, who was working along with Lawrence Bishnoi, was lodged in jail at that point in time, as he continues to be even now. The manner in which Goldie Brar was sitting in Canada and he planned this entire murder, acting as a handler and also using the code name of Dr. Saab. We'll continue to track that big exclusive story with my colleague Arvind Oja in just a few moments from now. Meanwhile, this is another exclusive report that we're getting before our viewers. India today has accessed the biggest disclosure in the Sidhu Moosewala murder case. We have learned that days before Moosewala was killed, the gangster Lawrence Bishnoi is lodged in Tihar jail, got his brother Anmol Bishnoi and his nephew Sachin out of India by arranging a fake passport. The fake passports of the gangsters came made from the Delhi Regional Passport Office. It was a well-hatched-out conspiracy to protect his brother and nephew and to leave no link behind to the murder of Moosewala. Bishnoi settled them abroad from where they could coordinate, facilitate and successfully execute this crime. Arvind continues to be with us on that big story. Arvind, Delhi Regional Passport Office से ये fake passports बनी हैं. Delhi Passport Office से भी कई सारे सवालों को जवाब देना है, लेकिन ये मामला फिर से आगे आता है कि किस तरह इफेक्टिवली लॉरेंस बिश्नोई हर बार जेल में बैठा ये क्राइम एग्जीक्यूट करता है और कितनी सिस्टमैटिकली इसे एग्जीक्यूट करता है। जी बिल्कुल, मैं और आपको बताऊं लॉरेंस बिश्नोई बहुत शार्प है। एलएलबी की डिग्री उसने हासिल कर रखी है और इंटरोगेशन करने वाले कई ऑफिसर्स ने बताया बहुत शार्प भी है। लेकिन इंडिया टुडे ने हत्याकांड के बाद इस बात का भी सोर्सेज के जरिए खुलासा किया था कि इसमें जो दो मास्टरमाइंड है उनको लॉरेंस बिश्नोई ने इंडिया के बाहर भिजवा दिया है। लेकिन अब इंडिया टुडे ने एक्सेस किया है वो फेक पासपोर्ट जिसके जरिए जो सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के जो प्लानर है वो इंडिया से बाहर भागे थे, जिसमें एक है सचिन बिश्नोई जिसने फेक पासपोर्ट बनवाया दिल्ली के संगम विहार के एक एड्रेस पर दिल्ली के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से और पूरी प्लानिंग की इंडिया में रहते हुए सिद्धू मूसेवाले के कत्ल की और कत्ल के ठीक पहले 21 अप्रैल को वो इंडिया से बाहर दुबई में फरार हो गया। नंबर 1। नंबर 2, हमने वो पासपोर्ट एक्सेस किया है लॉरेंस बिश्नोई के ब्रदर का जिसका नाम है अनमोल बिश्नोई जो फिलहाल यूरोप में है। इसने भी दिल्ली के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से हरियाणा के एड्रेस फरीदाबाद पर एक पासपोर्ट बनवाया और
हत्या के पहले ये फरार हो गया। फिलहाल ये यूरोप में है। लॉरेंस बिश्नोई ने इस बात का खुलासा किया था, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने पासपोर्ट एक्ट में एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन ये दो फेक पासपोर्ट जो इंडिया टुडे के स्क्रीन पर है स्नेहा, ये बताता है कि जो सिद्धू मूसेवाला है उसके मर्डर की प्लानिंग कितने ऑर्गेनाइज्ड वे में काफी पहले से जो रची जा रही थी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग रच रहे थे, और कैसे दिल्ली रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को बाकायदा चकमा देते हुए इन्होंने फेक पासपोर्ट बनवाया। और मर्डर के पहले, चूंकि लॉरेंस बिश्नोई चाहता था कि जब ये मर्डर की इन्वेस्टिगेशन हो उसमें उसका भाई और उसका जो भांजा है वो पूरी तरह से बचे रहे, इसलिए दोनों को पहले इंडिया से बाहर शिफ्ट करवाता, एक को दुबई एक को यूरोप। और ये दोनों भी गोल्डी बरार के साथ मिलकर इंडिया के बाहर से पूरी कॉन्स्पिरेसी को कहीं ना कहीं बुनते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं, और उसके बाद सिद्धू मूसेवाले का मर्डर होता है। तो ये एक इंटरनेशनल सिंडिकेट बन चुका है, जो आने वाले दिनों में पंजाब पुलिस के लिए तो फिलहाल चुनौती है ही, लेकिन अगर इस गैंग को क्रैक डाउन नहीं किया गया तो ये बहुत कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी कर सकता है एजेंसियों के सामने। Well, Arvind is getting us all of those details on the investigations in this case. Every single detail as to how this conspiracy was hatched from Canada. Two of his relatives, kin, one of them in Europe, one in Dubai. Lawrence Bishnoi packed them off, and this is the manner in which they executed this horrific crime against this popular singer, Sidhu Moosewala. Getting you all the details of the conversation, the manner in which Goldie Brar continued to act as a handler sitting in Canada, executed this crime, giving every single instruction to the shooters there, who then brutally pumped over 24 bullets into Sidhu Moosewala and killed him on the 29th of May. Goldie Brar's specific instructions that this job has to be done at any cost on before the 29th of May, or by 29th of May is what Brar said, sitting in Canada to the murderers here. In fact, he also went on to help them dispose of the weapons as per the conversations that have been accessed by India Today. Arvind Oja with their exclusive report. Arvind, हमारे viewers को फिर से बताइए किस तरीके से ये पूरा मर्डर प्लान किया गया था। गोल्डी ब्रार कनाडा में बैठे डॉक्टर साहब का नाम कोड नेम यूज करते हुए हैंडलर्स शूटर्स को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। अब तो मैं यही बताना चाहता हूं कि इंडिया टुडे ने ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, गोल्डी बरार जो कनाडा में बैठा हुआ और लॉरेंस बिश्नोई जो तिहाड़ जेल में उस वक्त बैठा हुआ था, किस तरीके से इस पूरी कॉन्स्पिरेसी, इस पूरे मर्डर को अंजाम दिया गया। पहले कोड नेम फिक्स किया गया। जो शूटर्स थे वो गोल्डी बरार को डॉक्टर साहेब के नाम से कोड नेम से बातचीत करते थे। लॉरेंस बिश्नोई का कोड नेम टाइगर्स था। जो शूटर्स थे वो लगातार गोल्डी बरार के इशारे पर मानसा विलेज के आसपास ही काफी दिनों से मौजूद थे, क्योंकि काफी डेस्परेशन थी सिद्धू मूसेवाले को कई बार मारना है, और कई बार अटेम्प्ट भी किया, अलग अलग प्लानिंग भी बनाई गई, लेकिन वो प्लानिंग फेल हो गई। लेकिन 28 मई को सुबह एक कॉल आती है शूटर्स को। सबसे पहले जो प्रियव्रत फौजी है, जो हरियाणा का गैंगस्टर है, जो फिलहाल मानसा विलेज में 28 मई को मौजूद था, उसको एक कॉल्स आती है कनाडा से एक डॉक्टर की। वो डॉक्टर कोई नहीं बल्कि गोल्डी बरार था, जिसने कॉल किया कि सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी हटा ली गई है, कम कर ली गई है, इसलिए तुरंत अब जो मर्डर है उसको अंजाम देना है। उसके बाद शूटर एक्टिवेट होते हैं। 29 मई को जो रेकी करने वाले हैं वो सिद्धू मूसेवाले के घर के बाहर, जिसमें केकड़ा नाम का शख्स का नाम सामने आया था, 2 से 3 लोग जो रेकी कर रहे होते हैं सिद्धू मूसेवाले के घर के बाहर। जब कोठी का बड़ा गेट खुलता है, वो जो रेकी करने वाले हैं वो सीधे गोल्डी बरार को मैसेज देते हैं कि गेट खुल चुका है। गोल्डी बरार तुरंत शूटर को एक्टिवेट करता है कि गेट खुल चुका है। इधर से आवाज आती है, जी डॉक्टर साहब वी आर रेडी। उसके बाद तीसरी कॉल आती है, क्योंकि जो रेकी करने वाले हैं वो घर के बाहर से गोल्डी बरार को मैसेज देते हैं कि सिद्धू मूसेवाला अपनी ब्लैक कलर की थार गाड़ी में निकल चुका है, उसके साथ सिक्योरिटी नहीं है। ये जानकारी गोल्डी बरार को दी जाती है। गोल्डी बरार जो अपने शूटर्स हैं उनको मानसा विलेज से 3 किलोमीटर पहले एक ढाबे पर रुकवाता है। वहां पर उनको जानकारी देता है कि तुरंत आप लोग भागिए, सिद्धू मूसेवाला बिना सिक्योरिटी के अपने घर से बाहर निकला है। और उसके कुछ मिनट बाद ये मर्डर हो जाता है। तो ये एक एक करके जो पूरी कॉल डिटेल इंडिया टुडे ने एक्सेस की है, 28 मई की कॉल, 29 मई की कॉल, कि किस तरीके से कनाडा में बैठा हुआ
डॉक्टर यानी जो कोड नेम है गोल्डी बरार का, वो कैसे एक एक करके शूटर को कोऑर्डिनेट करता है एक तरफ, दूसरी तरफ कोऑर्डिनेट करता है जो सिद्धू मूसेवाले के घर के बाहर रेकी कर रहे होते हैं, और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक बहुत प्लान वे में सिद्धू मूसेवाले का मर्डर होता है। और सिद्धू मूसेवाले के मर्डर के बाद की भी प्लानिंग इन लोगों ने। गोल्डी बरार मर्डर के बाद कहता है कि आप फतेहाबाद जाइए, वहां एक शख्स मिलेगा, वहां को रुकना है, और जो वेपन्स है, जो जर्मन मेड, तुर्की मेड, ये ग्लॉक पिस्टल है, जो काफी महंगी पिस्टल आती है, इंडिया के बाहर से मंगवाई गई थी, वो। We'll reconnect with Arvind in a few moments from now, but remember. Okay, Arvind is back with us. Arvind, आप बता रहे थे हमें ये कैसे मर्डर के पहले, मर्डर के दौरान और मर्डर के बाद भी मेटिकुलस प्लानिंग की गई थी। जी बिल्कुल, उसके बाद ये फतेहाबाद जाते हैं, वहां पर जो वेपन्स है, इंडिया टुडे ने वो एक्सक्लूसिव विजुअल भी दिखाया था स्नेहा, कि कैसे ये मर्डर के बाद जब जो 5 स्टेट की पुलिस है वो इनको तलाश रही थी, और ये कैसे गाड़ी में म्यूजिक बज रहा है और ये जो पिस्टल है वो दिखा रहे थे, वो तमाम वो पिस्टल वो दिखा रहे थे। तो वो जो पिस्टल है वो जर्मनी और तुर्की और उसके अलावा दूसरी कंट्रीज से आई थी, और काफी महंगी ये पिस्टल्स है, काफी महंगे ये वेपन्स है, जो खास तौर पे सिद्धू मूसेवाला का मर्डर के लिए मंगवाए गए थे। और आपको बताऊं कि सिद्धू मूसेवाले के कई एल्बम में यही वेपन्स का वो जिक्र भी करते थे। उन्हीं वेपन्स को जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसने इंडिया से बुलवाया था, और उसके बाद हत्याकांड को अंजाम देने के बाद शूटर्स को ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि ये वेपन्स फतेहाबाद में एक शख्स को देने हैं, और उसके बाद वहां से गोल्डी बरार कहता है कि आप ट्रक पकड़िए, ट्रक से गुजरात जाइए। गुजरात में ही मुद्रा में पहली अरेस्टिंग हुई थी, जब 2 लोगों को स्पेशल सेल ने मुद्रा से अरेस्ट किया था। तो देखिए किस ऑर्गेनाइज्ड वे में इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने, जिसमें बकायदा कोडवर्ड भी होता है गोल्डी बरार का डॉक्टर। वर्ड भी यूज किया गया है कई बार इन कॉन्वर्सेशंस में। अरविंद, फौजी वर्ड या कोड वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? देखिए, फौजी दरअसल प्रियव्रत फौजी है, जो हरियाणा बेस्ड जो शूटर था, शूटर्स का गैंग था, जो प्रियव्रत फौजी, वो ये गैंग था। तो जो प्रियव्रत फौजी है, जो एक शूटर्स के पूरे ग्रुप को लीड कर रहा था, उसका नाम प्रियव्रत फौजी है। वो एथलीट था, वो काफी दौड़ में पार्टिसिपेट करता था, एक स्पोर्ट्समैन था, और उसका एनरोलमेंट भी हुआ था आर्मी में। ऑल्दो उसके बाद उसने गैंग जो क्राइम है, क्राइम वर्ल्ड में उसने अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया। तो जो लीड कर रहा था शूटर्स को, वो प्रियव्रत फौजी है। प्रियव्रत रियल नेम है, लेकिन चूंकि आर्मी में उसका एनरोलमेंट हुआ था, इसके उसको फौजी का कोड दिया था। प्रियव्रत फौजी। Just going back to Arvind in a few moments from now, fixing the line with him. But Arvind getting us all of those details, talking about how those code names were used. Fauji was in fact the sharpshooter there. That was the code name. And the person who's being referred to as doctor time and again in these conversations that India Today has accessed exclusively is the man whose name has been doing the rounds for weeks together now, Goldie Brar, the associate of Lawrence Bishnoi. Sitting in Canada, he acted as a handler and got this entire murder executed. In that sense, he's somebody who's being seen as a mastermind from the time of the murder to planning it with those who then carried out a recce, giving him information, every single information that Siddhu Moosewala's house's big gate has opened and that he is without his security. That information was passed out by those carrying out the recce. One of them went by the name of Kekra to Goldie Brar, whose code name was Dr. Sahab. He then gave this information to the sharpshooters there, asking them to carry out the murder and ensure that this job is done by the 29th of May, come what may. After which instructions were given to, in fact, move to Fatehbad and then hand over these weapons as well to a man called Babban. This is what was done by Goldie Brar sitting in Canada. The manner in which the plan was executed is rather mind-boggling.